नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताते हैं वो उपाय जिससे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2016 के बारे में आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। दोनों उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन में से कौन बनेगा अमेरिकी राष्ट्रपति, इससे संबंधित और भी जानकारी बताइए हमारे दर्शकों को। दृढ़ इच्छा शक्ति किसी भी जातक की मंगल द्वारा निरूपित की गई। हिलेरी क्लिंटन को आप कुंभ लग्न और मिथुन राशि से तथा उनके प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप को सिंह और वृश्चिक, और इन दोनों की दो शेरों की लड़ाई में ग्रहों की क्या भूमिका है, नक्षत्रों की क्या भूमिका है, कौन ग्रह कितना बली है, युद्ध क्षेत्र में कौन कैसे पैतरे बदलेगा और निर्णायक भूमिका क्या होगी, ये ग्रह ही बता सकता है। मनुष्य की क्षमता के बाहर है। जबकि हिलेरी क्लिंटन को 18 साल पहले क्लिंटन स्वाई में अमेरिकन प्रेसिडेंट घोषित किया जा चुका है। So the principles laid down by the Western opinions that I have lost my army, I have lost my limbs, but I have not yet lost my unconquerable power. This is not applicable to Donald Trump at all. Donald Trump, whereas he is having in Cancer, that is in number 4, which has been spelled by him the crooked Hillary. Donald Trump has spelled his rebel Hillary Clinton crooked Hillary. She is begging for another 4 years for Barack Obama. No, this statement is not going to prove futile at all, because Donald Trump has lost his confidence right now. When there is a conjunction of Saturn and Venus in 12th house, that is 12th house, that is in Cancer, and that is the same 4 number which has been spelled by Donald Trump, that she is begging 4 years for Barack Obama, and that is the house of fire, the house of opponent, the house of rebel of Hillary Clinton, that is 6th house. So the fighting between both rebels shall be neck to neck fight in the 7th round, in the 7th state. Donald Trump, who had been trailing behind from 4% to 7% to 9% and even up to 13%, in the 7th round, it will be seen as if Donald Trump is fighting with courage, with might and main to get its goal, its destination. But the circumstances, the swarming opportunities which are available for Donald Trump are just giving him hit in his Achilles heel by dint of thrust of negative energy of ladies, honorable ladies who are inhabitants of United States of America and Muslim countries. They will unitedly oppose and create an impediment and obstruction on the way of Donald Trump to crown the success. Hence, again, today, on the basis of comparative natal chart and the conjunction of Jupiter and Saturn in the natal chart of Hillary Clinton and Venus and Saturn, the conjunction that is posted in the 12th house is just going opposite to Donald Trump. So, invincible position of Hillary Clinton prevails. अर्थात जब जब शनि के साथ शुक्र द्वादश भाव में होगा, जातक
पत्नी द्वारा पराजित होगा, स्त्री द्वारा पराजित होगा, स्त्री द्वारा अपमानित होगा, स्त्री से अपयश प्राप्त करेगा और स्त्रियों के कारण मैदान छोड़कर स्किप हो जाए, भाग जाए, इसकी संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुत फाइटर होता है वीनस और सैटर्न वाला भी। कहते हैं कि when his hands are cut, his head is cut, his legs are reduced to dust, even then he has capacity to fight. But very sorry to say that the conjunction of Saturn and Venus in the 12th house in Donald Trump again trails him back by 9% from Hillary Clinton। अर्थात आज की परिस्थिति में भी वीनस और सैटर्न, जुपिटर और मार्स की पोजीशन के तुलनात्मक अध्ययन से दोनों के सिद्ध हुआ कि ट्रंप आज भी 7th राउंड में भी हिलेरी क्लिंटन से 9% पीछे चल रहे हैं, ऐसा प्रमाणों से जाना चल रहा है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो चला है जानने का आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं हापुड़ से रेनू बोल रही हूँ। मुझे अपने पति के लिए पूछना है। उनकी जन्म तारीख है 23 जनवरी 1958, रात्रि के 10:31। जन्म स्थान हापुड़ है। उनकी आर्थिक स्थिति है, उसके लिए कोई जोशी उपाय बताइए। सिंह वृष रोहिणी। वृष रोहिणी में आर्थिक स्थिति का उन्नयन तब हो पाता है जब ऐसा जातक सामुद्रिक बेल्ट में कार्य करने का या समुद्र के किनारे से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का, व्यापारिक परिस्थिति को उत्कर्ष और उन्नयन की स्थिति तक पहुंचाने का संकल्प लेता है। अर्थात समुद्र का दर्शन पूर्णिमा के दिन या समुद्र की सेल्फी या समुद्र का चित्र कार्यस्थल पर पश्चिम और उत्तर के कॉर्नर पर लगाया जाए, तब आर्थिक उन्नयन की स्थितियां चंद्रमा के उत्कर्ष से देखी जाती है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरु जी प्रणाम, मैं बिहार से विनोद कुमार बोल रहा हूँ। मेरा गृह स्थान पेटा बाजार, जिला जहानाबाद, बिहार है। मेरी बेटी का नाम अंकिता कुमारी है, वो बीटेक किए हुए है और जिसका डेट ऑफ बर्थ 19/11/1990 है। जिसका समय है 1:03 रात्रि में और इसका जन्म स्थान गया है। स्वास्थ्य अभी बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रहा है, खराब चल रहा है। इसी के बारे में उपाय जानना चाहते थे कि कौन से क्या काम करें। सिंह वृश्चिक ज्येष्ठा द्वादश बृहस्पति केतु के साथ मोक्ष प्राप्त कन्या है आपकी, इसलिए इसके स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता करने की कदापि आवश्यकता नहीं है। बृहस्पतिवार को कदाचित, वजन तो इनका बहुत कम है, वजन इनका मुझे दिख रहा है 37 और 45 किलो के बीच, 4 किलो 500 ग्राम या 0.450 ग्राम चने की दाल बृहस्पतिवार को मंदिर में अपने आप ले जाकर चुपचाप छोड़कर चले आवें। उसी दिन से इनको बृहस्पति की ऊर्जा से शरीर के अंदर 5 प्राणों का अभ्युदय प्रारंभ होकर स्वास्थ्य फिट करना प्रारंभ करेगा। क्या प्रश्न है हमारे अगले कॉलर का, आइए जानते हैं। भाटिया बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। पंडित जी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 29 जुलाई रात के 12:30 बजे 1991। पंडित जी, उसकी शादी को भी 2-3 महीने हुए और दोनों में बहुत क्लेश होता है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ पंडित जी कि ये रिश्ता रहेगा कि नहीं रहेगा। आप मेरा मार्गदर्शन करो पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे को आंखों से भी दिखाई नहीं देता। नमस्कार पंडित जी। मेष कुंभ धनिष्ठा, आपका चिंतन बिल्कुल सही है। वीनस और मार्स यानी शुक्र और मंगल की युद्ध पंचम भाव पर, वैसे भी चंद्रमा से सप्तम। एक उपाय करके देख लो, वैसे परिस्थितियां आपके विपरीत जाती हैं। बोनसाई बरगद गमले में लगाकर लाल, और उस पर अगर ये जीवन भर जल डाले उस बरगद के वृक्ष पर अपने घर में ही, और उसका टीका लगाती रहे, तो मार्स की पोजीशन इसको कुछ हद तक गृहस्थाश्रम को सही रखेगी। अन्यथा अलगाव की स्थितियां सैटर्न और केतु दोनों इसके गृहस्थाश्रम को काटने के लिए तैयार बैठे। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम। मैं अमृता रीवा मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड के तिवारी का जन्म 19 अप्रैल 1980 को 21:42 रात्रि में देवहारी जिला शहडोल मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने BSc और MBA किया हुआ है। इन्हें सरकारी नौकरी कब और किस विभाग में मिलेगी, कृपया उचित मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। वृश्चिक मिथुन आद्रा 4 प्राइवेट के बाद जब 5वीं नौकरी लगेगी वो आपके पतिदेव की गवर्नमेंट नौकरी है। मिलिट्री, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, कॉर्पोरेट जगत एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम युवराज अजमानी है। मैं नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर 1990। मेरा जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान और समय है 7:35 सुबह की। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मेरी बेहतर नौकरी सही अच्छे वेतन के साथ कब लगेगी और कैसे लगेगी। धनु वृश्चिक ज्येष्ठा मूल के फल देता है भला, और मूल में लक्ष्य दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता, जिससे कोहरे में रोड तक नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन तब भी लोग चलते हैं। आप चल तो रहे हैं, लेकिन बृहस्पति और केतु की युति 9th, 10th एंड 11th हाउस को स्पर्श करने पर ऋषियों के मत में ये कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को बैंकिंग और टैक्सेशन क्षेत्र में प्रवेश करने के निमित्त प्रतियोगात्मक परीक्षा का आश्रय लेकर अपने योगदान के अनुपात में सफलता के वर्ण करने का क्रमांक देखा जाता है। क्या प्रश्न है हमारे अगले कॉलर का, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम। मैं अनिल कुमार अलवर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1/12/1977 है। समय 3:45 AM है। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी नौकरी जो गवर्नमेंट जॉब है वो कब तक लगने की उम्मीद है। तुला कर्क पुरुष बिल्कुल सही समय है। आप केवल 6 महीने या 7 महीने बच रहे हैं आपके गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए। इसका मतलब परीक्षाएं आप ले चुके हैं, रिजल्ट अवेटेड है, या किसी भी परीक्षा का रिजल्ट न्यायालय के अधीन है, ऐसा प्रमाणों से दिखता है। और इसी में अपेक्षा है ग्रहों की कि आप गवर्नमेंट जॉब में पदस्थ होने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगले कॉलर, आइए देखते हैं इनका क्या प्रश्न है। मेरा नाम राम खिलाड़ी है। मैं फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 14/10/75। मेरा जन्म स्थान अलीगढ़ सासनी है। बिजनेस के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरा कंप्यूटर का काम है और मेरा काम ठीक नहीं चल पा रहा है। दूसरा, मैं अपने मकान के बारे में भी बात करना चाहता हूँ कि मेरा अपना मकान कब तक बनेगा। थैंक यू सर। कन्या मकर श्रवण, मकान का प्रश्न तो अभी गलती से मत करो, 42 साल के हो जाना तब मकान का प्रश्न करना। रही बात कार्यस्थल की साउथ सेंटर, साउथ दीवाल और निवास स्थान के साउथ सेंटर, साउथ वाटरफॉल, इसको अगर आप रोक दें तो आप जहां हैं उसी स्थान से उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम। मैं सुशांत बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 8/5/91 राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरुजी कि मैं BA कर रखा हूँ, सुबह शाम 6 बजे जब डेट ऑफ बर्थ जन्मदिन है, क्या मेरा कुछ क्षेत्र में कुछ उन्नति मिलेगी, कैसे तय करूँ। वृष कुंभ धनिष्ठा B.Ed कर लें आप, या टीचिंग का कोई भी प्रशिक्षण आप कर लें। निश्चित तौर पर आप टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, सहायक अध्यापक होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। आपके द्वारा प्रस्तुत पुरुषार्थ के अनुपात में। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। मेरा नाम करुणा ओझा है। मैं पटना बिहार से बोल रही हूँ। 2 अप्रैल 1968 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, शाम 7 बजे। तो गुरुजी पूछना है कि मुझे कोई कामयाबी नहीं मिल रही है जीवन में। जीवन बहुत संघर्षपूर्ण बीत रहा है। घर में हमेशा कलह वगैरह होते रहता है और शांति नहीं है। हेल्थ भी मेरा ठीक नहीं रहता है, तो मैं क्या करूँ। जब तक शरीर के अंदर रोमांच, पुलकावली, आनंद की अवस्था, व्हाट यू कॉल एक्सटैसी, जिसको कहते हैं सहज भाव प्रसन्नता का, कृत्रिम नहीं आ सकता। सूर्य शनि द्वादश है ना, और बृहस्पति 5 प्राणों का अधिष्ठान, पंचम हो गया अकेला। मामा की मदद आप ले, मामा पक्ष से
मामा के यहाँ का कोई भी चीज प्राप्त कर ले, उसको अपने यहाँ रखिए, खाती के तौर पर, अमानत के तौर पर। आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा, गृहस्थाश्रम भी सही होगा। और प्रातः या सूर्य की किरण जमीन में ना पड़े उस समय जल देना प्रारंभ कर दें सूर्य को। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे समस्याओं के समाधान का क्या है उपाय। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे वो उपाय जिससे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 19 अगस्त और दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकम तिथि शुक्रवार का दिन, शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए गुरु मंत्र में जानते हैं समस्याओं के समाधान का उपाय क्या है। मित्रों, भाद्रपद का महीना चल रहा है और विशेष रूप से महीना बहुत सारे कामों के लिए और बहुत सारे साधनाओं के लिए शुभ महीना होता है। इस माह गायत्री जप का विशेष विधान माना गया है। कई बार हम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, बुजुर्गों से हम आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और हम पारिवारिक जीवन में या हम अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों को फेस करते हैं। ऐसे समय में माता गायत्री की यदि हमारे ऊपर कृपा हो तो सभी प्रकार की समस्याओं से बड़ी आसानी से विजय श्री की प्राप्ति की जा सकती है। और गायत्री की आराधना का यह बहुत अच्छा महीना है। आज हम किसी व्यक्ति के लिए कोई साधना करते हैं या किसी व्यक्ति के लिए कोई हम मन्नत करते हैं या किसी व्यक्ति के लिए हम कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो माता गायत्री की एक माला का जाप सामने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है और एक माला का जाप स्वयं की तरक्की के लिए किया जाता है। अर्थात 2 मालाएं इस माह में गायत्री के मंत्र की हर व्यक्ति को करना चाहिए। कमलगट्टे की माला ले सकते हैं, स्फटिक की माला ले सकते हैं, चंदन की माला से भी इस जाप को किया जा सकता है। वैसे हरिद्रा की माला से यदि हम जाप करते हैं तो हमें साधनाओं में सफलता की प्राप्ति होती है। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे वो उपाय जिनसे दिन को और भी सफल बना सकते हैं। आज आपका दिन अच्छा दिन रहेगा और काम आपके बहुत अच्छे से संपन्न होंगे। सुबह से ही आप कुछ ना कुछ एक नया उद्देश्य लेकर निकलने वाले हैं और इसमें सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का व्यापारिक दृष्टिकोण से भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन नौकरी पैसा वाले व्यक्तियों को थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी होगी और अपने अधिकारियों से संतुलन भी बनाकर रखना होगा। आज आपको सफलताएं मिल जाएं, भगवान की एक माला का जाप करें। मिथुन राशि। आपका समय अनुकूल चल रहा है। भाग्य को यदि आप बढ़ाना चाहते हैं और कोई काम ऐसा करना चाहते हैं जो भविष्य के लिए लाभकारी हो, उसके लिए आज सबसे अच्छा दिन है, उसका शुभारंभ कर सकते हैं। वैसे जिन कामों को आप कर रहे हैं उसके दूरगामी परिणाम भी अच्छे होंगे। आज के दिन को और भी सफल बनाने के लिए गाय को चारा खिलाकर ऑफिस जाएं। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा है, सफलताएं भी अच्छी हैं और परिस्थिति भी बहुत अच्छी है। लेकिन जिन जिन कामों को आप करने जा रहे हैं कहीं ना कहीं मित्रों के माध्यम से ही व्यवधान आ रहा है। काम कुछ और करने जाएंगे, काम कुछ और करना पड़ेगा, लेकिन जो भी काम करना होगा उसमें सफलताएं अच्छी मिलेंगी। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए घर के बुजुर्गों को मिठाई जरूर खिलाएं। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का समय अनुकूल है, परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत है। जो काम आप कर रहे हैं उस काम में सफलताएं बहुत जल्दी मिलेंगी, लेकिन जो जिम्मेवारी आप ले रहे हैं उसका निर्वहन ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। तो आज जिम्मेवारियों को लेने से बचें, व्यक्तिगत कार्यों को संपन्न करने की तरफ ध्यान केंद्रित करें। आज आपका दिन अच्छा होगा। घर में 2 अगरबत्ती भगवान को अवश्य लगाएं। कन्या राशि। समय अच्छा है और आज सुधार के भी संकेत हैं। यदि कोई कार्य बिगड़ा हुआ है, कहीं किसी मित्र से संबंध सुधारने हैं या शत्रुओं से संबंध सुधारने हैं तो उसके लिए समय शुभ चल रहा है। आपके प्रयास
रंग लाएंगे। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए वरिष्ठ जनों की मदद लेना श्रेष्ठ कर होगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों का लाभ का दिन है। व्यक्तिगत सफलताओं का दिन है और दूसरे व्यक्तियों को सहायता करने का दिन है। धन को छोड़कर सभी प्रकार से दूसरे व्यक्तियों की सहायता की जा सकती है और व्यक्तिगत जो काम करने हैं उसमें तो सफलताएं मिल जाएंगी। आज आपका दिन बहुत अच्छा होगा, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का समय आज थोड़ा सा कमजोर है। ठोस निर्णय लेने में आपको सावधानी रखनी होगी और दूसरे व्यक्तियों की बातों में आकर तो निर्णय बिल्कुल ही ना लें। जितना आप सोच रहे हैं वही सही है और दूसरा व्यक्ति आपको भ्रमित कर सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। आज आपके दिन को अच्छा गुजारने के लिए जो भी काम करें अधिक सोच विचार से करें, तभी सफल होगा। धनु राशि आज बहुत अच्छा दिन है, अच्छी सफलताएं और अच्छे लोग आपको मिलेंगे और कहीं ना कहीं कुछ करने जा रहे हैं उसमें भी अच्छे लोगों की मदद आपको प्राप्त हो जाएगी। मात्र कार्य का शुभारंभ करने में देरी नहीं करें। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए दही का सेवन करके घर से बाहर जाएं। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अनुकूल है। आर्थिक दृष्टि से कुछ सुधार हो सकता है। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। आंखों के रोग में भी लाभ की संभावनाएं बन रही हैं और आज विशेष रूप से जो भी काम करेंगे अच्छे रूप से फलित हो जाएगा। आज आपका दिन और अच्छा रहे, पीले रंग का रुमाल रखें। कुंभ राशि व्यक्तियों का अधिक सोच विचार नहीं करना है। जो भी करना है आज का ही दिन आपके पास है, उसका शुभारंभ आप कर सकते हैं। सफलताएं समय पर प्राप्त हो जाएंगी। अधिक चिंतन करने के कारण आज का दिन हाथ से निकल जाएगा और 1 महीने आपको इंतजार करना होगा। आज आपका दिन अच्छा रहे, भिखारियों को वस्त्र दान अवश्य करें। मीन राशि व्यक्तियों का अच्छा दिन है। लाभ प्राप्ति होगी, यात्रा होगी, मित्रों की मदद मिलेगी। कुल मिलाकर जो भी योग संयोग बन रहे हैं आपके पक्ष में ही हैं। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए संशय की स्थिति में ना रहें, ठोस निर्णय करें, बेहतर होगा। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।